پاکستان کی جوہری ہتھیار استعمال نہ کرنے کی کوئی پالیسی نہیں، ترجمان پاک فوج نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ کشمیر پاکستان کی شہرک قرار، ڈیل سے متعلق افواہیں مسترد، آخری گولی، آخری سپاہی اور آخری سانس تک لڑنے کا عزم۔ ہندوستان کسی بھی جارحیت سے پہلے 27 فروری یاد رکھے، پریس بریفنگ۔ ترجمان پاک فوج نے اسرائیل سے تعلقات کو پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ غیر رسمی گفتگو میں کہا مودی نے کشمیر پر نو بال کرائی، چھکا تو لگے گا۔ کلبھوشن جادیو کو 5 شرائط کے تحت قونصلر رسائی دی گئی۔ اسامہ کے بارے میں امریکہ کو انفارمیشن ہم نے دی تھی، مگر امریکہ نے دھوکہ دیا اور یک طرفہ آپریشن کیا۔ پر اظہار تشویش، علاقائی امن اور استحکام میں پاکستان کے کردار کا بھی اعتراف۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی، چین کے وزیر خارجہ نے احتجاجاً بھارت کا سرکاری دورہ منسوخ کر دیا۔ چینی وزیر خارجہ ہفتے کو اسلام آباد پہنچیں گے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان سہ فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی درندگی جاری، کرفیو کا 31واں روز، دنیا کی سب سے بڑی کا استعمال، 11ویں جماعت کا طالب علم جامع شہادت نوش کر گیا، وادی کا دنیا بھر سے رابطہ بدستور منقطع۔ We meet again today for the third round of political consultations on Kartarpur Sahib. Pakistan is committed to open the Kartarpur Sahib corridor for the 550th birth anniversary of Baba Guru Nanak Sahib. کرتارپور راہداری پر پاک بھارت مذاکرات کا تیسرا دور مکمل، راہداری کا 90% کام مکمل ہے، نومبر میں روٹ کھول دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا اعلان، کہا بھارتی ڈوزیئر کا پاکستان نے جواب دے دیا۔ صرف ابھینندن ہی نہیں، موجودہ بھارتی ایئر چیف کا طیارہ بھی پاکستان نے مار گرایا تھا۔ بھارتی ایئر چیف مارشل دھنووا نے اعتراف کر لیا، کارگل سے حملے کی کوشش کرنے پر پاکستان نے طیارہ گرایا، پیراشوٹ سے جان بچانی پڑی تھی۔ اکتوبر میں اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کا پلان، جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کمیٹیوں کا باضابطہ اجلاس آج طلب کر دیا۔ اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کی حکمت عملی سمیت اہم امور پر غور ہوگا۔ واٹس ایپ پر دوستی اور محبت کا بھیانک انجام، کراچی کے علاقے کریم آباد کی کچرا کنڈی سے 3 ماہ قبل ملنے والی جلی ہوئی لاش کا معمہ حل ہو گیا۔ 27 سالہ علی حمزہ کو اس کی محبوبہ شبانہ نے ساتھی کے ساتھ مل کر قتل کیا، مقتول کو سعودی عرب سے بلایا تھا، دونوں ملزمان گرفتار۔ کراچی میں کانگو کا ایک اور مریض سامنے آ گیا، مریض کے رہائشی 15 سالہ شریف نے وائرس کی تصدیق۔ رواں سال کانگو سے 16 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اے ٹی ایم میں چوری کرنے والے صلاح الدین کے والد نے بیٹے کے قتل کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ میرے بیٹے پر دوران حراست پولیس نے بہیمانہ تشدد کیا ہے، پوسٹ مارٹم سے مطمئن نہیں، والد کی دہائی۔ قومی ٹیم کو نیا ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مل گیا، مصباح الحق کو 3 سال کے لیے ذمہ داریاں دے دی گئیں، وقار یونس بالنگ کوچ بن گئے، کوشش ہوگی ٹیم جارحانہ کرکٹ کھیلے، مصباح کی پریس کانفرنس۔ پی سی بی کی مصباح الحق پر مہربانیاں سابق کھلاڑیوں کو کھٹکنے لگی، حیران ہوں اتنے عہدے ملنے کے بعد مصباح الحق کو چیئرمین نہیں بنایا گیا، راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کا طنز۔ السلام علیکم، آج 12 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی پاک فوج کے دشمن کو دیے گئے اہم اور 2 ٹوک پیغام کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرحد ہے اور ہم کشمیر کے لیے کسی حد تک بھی جانے سے گریز نہیں کریں گے، آخری گولی، آخری سپاہی اور آخری سانس تک جائیں گے۔ غبار کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ہماری کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ نو فرسٹ یوز۔ کشمیر ہماری شہرک ہے، کوئی بھی قدم اور کسی بھی انتہا تک جائیں گے، وہی آخری سانس تک۔
याद रख, कश्मीर हमारी जान से करीब है, उसके लिए हर हद तक जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कश्मीर हमारी शहरग है, इसके लिए हम कोई भी कदम और किसी भी इंतहा तक जाएंगे, ख्वाह इसकी हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान पुरअज़्म हैं और पुरअज़्म रहेंगे। आखिरी गोली, आखिरी सिपाही, आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह। यह भी वाज़ेह किया, एटमी हथियारों के इस्तेमाल में पहल न करने की हमारी कोई पॉलिसी नहीं। हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि नो फर्स्ट यूज। हमारा वेपन डेटरेंस का है और उसके लिए जो भी इसका इस्तेमाल है स्टेट की पॉलिसी के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि हम चेंज कर देते हैं तो चेंज कर दें, दिस इज देयर चॉइस, देयर डिसीजन। फर्स्ट के बाद सेकंड भी होती है। तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन को 27 फरवरी भी याद दिला दी। और 27 फरवरी आपको याद रहना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी कोशिश की तो स्क्वाड्रन लीडर हसन और विंग कमांडर नुमान जैसे शाहीन बिल्कुल तैयार बैठे। DGI-SPR ने कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी दुनिया के सामने रख दिया। जो हमारी जद्दोजहद है वो कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के हसूल की है। अभी आज़म ने अभी तक तकरीबन दुनिया के 13 लीडर से बात की है। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कुछ 36 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की। फिर ये रिजल्ट निकला कि मसला कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीर का हल हमारा कौमी मुफाद है। हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कश्मीर के कौमी दरख्त चिनार का पत्ता भी नुमाया था। दुश्मन ने हमला किया तो जवाब कहीं ज्यादा कुव्वत के साथ मिलेगा। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार कर दिया और कहा कि मोदी ने कश्मीर पर नो बॉल करा दी, अब छक्का। ने वाज़ेह किया, इज्जत और कश्मीरियों की मदद के लिए जेबें नहीं देखेंगे। जंग इज्जत के लिए लड़ी जाती है, पैसे बचाने के लिए नहीं। कितने दिन का पेट्रोल और अजनास है, सब सोचा हुआ है। हमारी मईशत ऐसी भी नहीं कि जंग ना लड़ सकें। हमला हुआ तो रद्दे अमल कहीं ज्यादा कुव्वत के साथ देंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था, भारत कश्मीर में जंग का बीज बो रहा है, लेकिन याद रखें कश्मीर पर कोई सियासत या सौदा नहीं होगा। कुलभूषण जाधव की कौंसलर रसाई से मुतालिक तर्जुमान पाक फौज ने बताया, कौंसलर रसाई 5 शराइत के तहत दी गई। पाकिस्तान की शराइत कानून के मुताबिक थी। भारत ने पहले इनकार किया, फिर शराइत कबूल कर ली। खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भी पाक फौज के बगैर कुछ नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने बता दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि हम मालूमात शेयर ना करते तो अमेरिका उसामा तक कभी नहीं पहुंच सकता था। हमने उसामा बिन लादेन की एक टेलीफोन कॉल पकड़ी थी और अमेरिका को इंफॉर्मेशन दी थी। आपको बताएं कि तर्जुमान पाक फौज ने बता दिया है कि खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका पाक फौज के बगैर कुछ नहीं है। हम मालूमात शेयर ना करते तो अमेरिका उसामा तक कभी नहीं पहुंच पाता। हमने उसामा बिन लादेन की एक टेलीफोन कॉल पकड़ी थी और अमेरिका को इंफॉर्मेशन दी थी। इजराइल को तस्लीम करने से मुतालिक बातें दुश्मन का प्रोपेगेंडा है। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, कहा इजराइल के साथ ताल्लुकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस हालत में हम हैं इस वक्त कौम को एक होने की जरूरत है और हम एक हैं। तो उस हाइब्रिड अटैक का जो एक पहलू है वो इसी किस्म के शगुफे छोड़ना है कि जो आपकी कौम को उस तरफ डाल दे जो आप में तकसीम डाल दे। पहली बात तो ये कि ये रियासती फैसले और ये फैसले जो रियासत के इस किस्म के होते हैं। 72 साल से आपने एक स्टांस लिया हुआ है और आपका पासपोर्ट दुनिया का वाहिद पासपोर्ट है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है। इवन उन लोगों के भी जिनके पहले ताल्लुकात नहीं थे और अभी बनाए, उन्होंने भी ये स्टेप नहीं किया था। तो अभी तक तो स्टेट की पॉलिसी है। DGI-SPR का यह भी कहना था कि आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते थे। तोसी का फैसला वजीर आजम ने खुद किया। It's a prerogative of the Prime Minister. He has exercised that. Army Chief never wanted to do it. 41 years सर्विस के बाद हर बंदे का दिल करता है कि वो नॉर्मल लाइफ में जाए, रेस्ट करे। हम हुक्म की तामील करते हैं और एक सिस्टम के तहत काम चलता है। हमारा जो आर्मी चीफ होता है कि जो 6 लाख फौज होती है वो जिस तरफ देखते हैं फौज उस तरफ देखती है। ठीक है, आर्मी चीफ बहुत पावरफुल होते हैं लेकिन उनके बदले में 125 प्रमोशन नहीं होती, एक के बदले में एक ही प्रमोशन होती है। ये वही यूट्यूब वाले जो वॉइसेस हैं ये उन्हीं के हाथ है। आपकी फौज बहुत मजबूत इंस्टीट्यूशन है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री किसी आर्मी चीफ को चाइनीज प्रेसिडेंट ने बुलाया, उनसे बातचीत की।
बुलेटिन में अब जिक्र बड़े सिफारती दौरे का। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात हमारे साथ हैं। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी के हाथ में हाथ दे दिया। कश्मीर पर पाकिस्तान दुनिया भर की सिफाती सरगर्मियों का मरकज बन गया। अरब वर्ल्ड भी मुतहरिक। दो अहम बिरादर इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। दफ्तर ख़ारजा में मुलाकात हुई, हाथों में हाथ डालकर यकजहती भी दिखाई। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी और इमारती वज़ीर ख़ारजा को खित्ते की सिक्योरिटी और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बता दी। जो उनकी नशिस्त हुई दोनों वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म के साथ, मैं समझता हूँ कि आज की नशिस्त के बाद ये कोई अभाव नहीं है। माजी की तरह वो हमें मायूस नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने OIC इजलास से मुताल्लिक बताया, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की हिमायत बहुत अहम है। दोनों ममालिक का OIC इजलास में अहम किरदार होगा। पाकिस्तान OIC चाहता है कि अपना किरदार अदा करे। OIC की हम एक नशिस्त करें और उस पे हम उनको एतमाद में लेना चाहते थे। उस पे मुझे उनकी मुकम्मल तारीफ और सपोर्ट आज हासिल हो गई है। वज़ीर ख़ारजा ने इस यकीन का भी इजहार किया कि इंसानी हुकूक कौंसिल में भी दोनों दोस्त ममालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की करेंगे। और अब बात मकबूजा वादी की। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 31वां रोज है। सड़कें सुनसान हैं, मोहल्ले वीरान हैं, कारोबारी जिंदगी ठप पड़ा है। सूरा में भारतीय फौज का पैलेट गन्स का इस्तेमाल, 11वीं जमात का तालिब इल्म शहीद हो गया। तस्वीर मकबूजा कश्मीर, जहां जिंदगी एक माह से कैद है। 31 रोज से लोग भूखे प्यासे घरों में नजरबंद हैं। खाने को कुछ नहीं, पीने को सिर्फ आंसू है। दवाएं खत्म, बीमार अस्पताल नहीं जा सकते, खवातीन की इज्जतें भी महफूज नहीं। खौफ के साए हर घर में मंडला रहे हैं। बाहर निकलने पर है, अब तक हजारों कश्मीरियों को जेलों में बंद किया जा चुका है। कोई किसी से राबता नहीं कर सकता। मवासलाती निजाम जाम पड़ा है। वादी में भारतीय बर्बरियत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद कश्मीरी बेयार मददगार आज़ादी की जंग लड़ने में मसरूफ हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम से यकजहती के लिए पाकिस्तानी शहरी बुध के रोज भी सड़कों पर निकले और मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज